Welcome to another part of voice and video over internet protocol. In this part, we'll discuss about network health status, basically about delay, jitters, and losses. So earlier हमने पढ़ा था कि जिटर या डिले या लॉसेस होते क्या हैं. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट रियल टाइम एंड ऑफलाइन रॉ डेटा के लिए हमें इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है. अगर ऑफलाइन हम कोई चीज़ व्यू कर रहे हैं या अगर हम कोई वीडियो देख रहे हैं या ऑडियो सुन रहे हैं जो कि प्री रिकॉर्डेड है, वहाँ पे तो हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता दैट वॉट एवर द डिले ऑकर्स, और हम पूरा वीडियो डाउनलोड करके उसके बाद उसको चलाएं, that doesn't makes a difference. But if we are talking about real time scenario, if we are talking about live conversation, in that case it affects. Now if we look on to the issue, here you see some network plots are there. If suppose the delay is going higher and higher, at that time the network is very poor. It is acceptable up to some level, and it is best when there is less losses and less packet loss and less delay. Okay, so ये ऐसे टर्म्स हैं जिनका कि छोटा होना ज़्यादा अच्छा होता है. ठीक है. नाउ अगर हम ऑडियो की बात करें, इफ़ वी आर टॉकिंग, इफ़ वी आर सेंडिंग सम ऑडियो, at that time what we are looking for is we are looking for live audio at all times. ठीक है, हम रियल टाइम बेसिस पे चाहते हैं कि हाँ अभी भेजा था तो अभी ऑडियो पहुंच जाए. ठीक है. अगर हम किसी तरीके के विजुअल इफेक्ट की बात करते हैं, किसी तरीके की इमेजेस की बात करते हैं, एट दैट टाइम वो उतना एक्यूरेसी से ना भी जाए तो चल जाता है. ठीक है. And if we are talking about the third part, that is suppose some kind of images are there, some kind of textual information is there, so for all of them it is preferable that it should be real time, but थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा तो चल जाता है, but it should be there with the it should not be there with the voice आपकी clear होनी चाहिए. Now if we want actually to go for a test, so you can find there are various tools available for testing purposes. The best tools that we can use is, you can see here the beacon. ये आपका एक ऐसा टूल है जो कि ज़्यादातर सर्वर से कनेक्ट हो जाता है और इजीली अवेलेबल होता है. ठीक है. ऑल्दो इट वर्क्स ऑन विंडोज़ प्लेटफॉर्म, डजेंट मैटर, बट वी कैन get it connected and we can check that how the system is performing. beacon से अगर हम चेक करते हैं तो you can see that different types of messages that are being sent and different messages that you can identify. Everything comes here in single instance. Now if we are talking about some online system, so here we are looking for some active measurement tool. एक्टिव मेज़रमेंट टूल क्या है? एक ऐसा टूल है जो कि एक्टिवली अपनी तरफ से चेक करता है सिग्नल भेज भेज करके कि वेदर द सिस्टम इज़ वर्किंग फाइन और नॉट. ठीक है. एक्टिव मेज़रमेंट टूल वी हैव VPerf टू यूज़ दिस, बट एक्टिव मेज़रमेंट का मतलब क्या है कि हम ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं कि कोई स्ट्रीमिंग सर्वर हमारा किस तरीके का कम्युनिकेट कर रहा है, क्या वो ज़्यादातर डिवाइसेस को सही और राइट टाइम पे इंफॉर्मेशन पहुंचा देता है या नहीं पहुंचा पाता. ठीक है. नो
यहाँ पे देयर इज़ अ फैक्टर कॉल्ड गैप मॉडल. गैप मॉडल डिफाइन करता है आपका कि क्वालिटी ऑफ सर्विस और आपका एक्सेप्टेबिलिटी और गुड पुअर इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है. ठीक है, किस तरीके के नेटवर्क फैक्टर को आप कहेंगे कि हाँ ये ठीक है, काम चलाऊँ है, ये चल जाएगा, ये बहुत अच्छा है. ठीक है. So for that we have defined some rules like here you see poor grade is level up to 276 kbps of speed, that is the bandwidth that we have taken. Delay which is greater than 300 milliseconds, or in terms of packet losses it should be 1.5 packets 1.5%. And if we talk about transmission delay, it is 50 milliseconds. In the same way acceptable range हमारी 20 to 50 है. या for each category we have defined different type of grades. Now if we go for the test cases, we check each and every part separately. That means your bnet, then dnet, then lnet and jnet, all the things are checked separately. Losses हम अलग कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम बैंडविड्थ अलग कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. In some cases it may be that it is acceptable, in some cases it is very good, in some cases it is somewhat bad also. Okay. Now टेस्ट केसेस भी हम बहुत ज़्यादा ना रखें, क्योंकि अगर इतने सारे टर्म्स इकट्ठे ले जाएंगे तो फिर हमें टेस्ट केसेस बढ़ाने पड़ेंगे. तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं उनको भी फॉलो करते हैं और हम चेक करते हैं कि किस कंडीशन में हमारा जो आपका सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है. ठीक है. और केवल उन्हीं केसेस को चेक करते हैं हम. ये एरिया जो पुअर वाली है या ये एरिया जिसकी कि हम उम्मीद ही नहीं करते कि ये भी आएगा, तो ये एरियाज़ हम छोड़ देते हैं. ठीक है. वी ओनली लुक फॉर दिस एरिया एंड दिस इज़ ईजी टू डिटरमाइन दैट व्हाट एरिया वी आर लुकिंग फॉर. ठीक है. नाउ स्ट्रेटेजिकल वे से अगर देखा जाए तो टेस्ट केसेस रिड्यूस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि यहाँ से मार्जिन वैल्यूज़ को लीजिए, उनमें से जिन वैल्यूज़ पे आपको टेस्ट करने की ज़रूरत है आप केवल वो वैल्यूज़ सिलेक्ट कीजिए जो पिछले वाले रूल से बाहर हो गई थी कि इसके आने की तो संभावना ही नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल दिस एरिया, ये अगर आता भी है तो हमें नहीं चाहिए. तो व्हाट वी डू, वी जस्ट नेग्लेक्ट दोज वैल्यूज़. ठीक है. वी जस्ट लुक फॉर द वैल्यूज़ दैट वी आर लुकिंग फॉर. ठीक है. सो इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास करीब टोटल 42 केसेस बनते हैं जिनको हमें टेस्ट करने की ज़रूरत है. Now if we look on to the network, we have two types of network testing. It can be closed network testing, it can be open network testing. Closed network में क्या बेनिफिट है कि हमारा अपना ही क्लाइंट यूज़ करने वाला है उस नेटवर्क को, तो हम जानते हैं कि कितने इसमें क्लाइंट्स पॉसिबल हैं और उन क्लाइंट्स के पास हम किस तरीके का डेटा सेंड कर सकते हैं. इसमें अटैक्स वाले यूज़र नहीं आएंगे और क्योंकि हमारा अपना सेपरेट लैन है तो वहाँ पे बाहर के एंटिटीज़ कम है. ठीक है. सो क्लोज्ड की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ सिस्टम्स जो है उसके ऊपर थोड़ा बहुत डिपेंड करेगा दैट हाउ मच इज़ द क्वालिटी ऑफ सर्विस इज़ देयर. रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट लाइक कि आप बैंडविड्थ कितनी यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है,
क्योंकि यहाँ पे आप LAN यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे तो बैंडविड्थ भी आपके हाथ में है। नाउ गैप मॉडल की बात करें यहाँ पे, तो अगेन वी चेक द मॉडल इन दिस वे दैट वी फाइंड आउट कि क्या चीज़ें हमें जो है किस लेवल पे हमारे पास कितना टाइम लग रहा है, जैसे ट्रांसमिशन डिले कितना हो रहा है या प्रोपेगेशन डिले कितना हो रहा है। वी चेक ऑल दीज थिंग्स and we try to minimize it also, that up to what extent we can reduce the count. Okay, now if we talk about gap model validation, here we check that what is the actual scenario and what is the calculated scenario, और इन दोनों के बीच में गैप कितना बन रहा है। Now there is multi-activity packet trains technology. इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि अलग अलग एक्टिविटीज़ के डिफरेंट पैकेट्स को सेंड कर देते हैं ऑन द सेम चैनल, एंड सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई दैट व्हाट आर द ट्रैफिक्स जनरेटेड बाय मल्टीपल टाइप्स ऑफ चैनल। और अगर आपके पास अलग अलग तरीके के बहुत सारे कनेक्शंस इकट्ठे हो जाते हैं तो उसमें फिर आपका चैनल किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है। हियर यू सी from side A to side B we have given n type of services together, and because of this packet train you can find that आपका जो अपना पैकेट है जिसको कि आप एक्चुअल में चेक करना चाह रहे हैं वो एक सर्टेन टाइम के बाद रिपीट होता है। ठीक है, सो हमें एक ऐसा लेवल मिल जाता है जिस समय कि वो आपके पैकेट जो है वो स्लोअर मूव करने लग जाता है। बैंडविड्थ का एक छोटा सा हिस्सा हमें मिल पाता है, पूरी बैंडविड्थ नहीं मिल रही होती। हमारा पर्पज़ क्या है, हम चेक करना चाहते हैं दैट हाउ वी कैन वर्क ऑन लेस बैंडविड्थ, बिकॉज अगर सारी बैंडविड्थ हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज़ कर लेंगे तो हमारे बाकी के यूज़र्स जो है किसी और काम के लिए नेटवर्क को यूज़ नहीं कर पाएंगे। नाउ हियर यू फाइंड इस मेथड की वजह से जो हमारा एक्चुअल टाइम है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है और डिलेज बढ़ जाते हैं, एंड इसके हेल्प से हमें पता चल जाता है कि इन एक्चुअल सिनेरियो व्हाट विल बी द केस वाइल इम्प्लीमेंटिंग दिस VPerf टूल। ठीक है, नाउ हियर यू सी फाइनली द परफॉर्मेंस मेजरमेंट। जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ कनेक्शंस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फॉल्ट इवेंट्स बढ़ते चले जाएंगे, और फॉल्ट इवेंट्स बढ़ने के साथ साथ आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विस रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, नाउ देयर इज़ सम एक्टिविटी फॉर यू। यू हैव टू लिस्ट सम प्रोटोकॉल्स फॉर VoIP communication, and secondly you have to differentiate between internet chat and voice over internet protocol. That's all for now. Thank you.